Everyone, welcome to my channel. So today is our day 2 of our 40 days challenge to prepare for JRF in December 2025. So let's start. Today I'm going to tell you that what I did today. Like today was Sunday and I was not able to get more time to do study. That's why I only did a business environment. So today I'm going to tell you what I did today. Like yesterday we talked about the types of business environment and internal external this thing we told CSR we talked about. But one thing more that I'm going to tell you about CSR. I have analyzed the PYQs and there was like it was asked in PYQ that payroll model of CSR. So these are four models, like they have four components of it. For the first one is economic, legal, ethical, and philanthropic. So this was the question, and now I'm going to tell you that what I did today. So I did modes of entry into international business. So like there are different types of modes by which we can enter into a foreign market. So the one is exporting. It is two types: direct exporting and indirect exporting. Direct exporting is that like you are living in India and you are sending the goods in the foreign country. And next is indirect, like through intermediaries we sell our product. And second is licensing. In this what happened, we grant the right to use our patent, trademark, and technology. Like if I'm preparing something and if I have patent on something like intellectual property or thing or something else, then I give license to other person living in another country to use my patent as and earn their money, so I will get royalty. So this is the licensing. And franchising is something like to operate under its brand or business model, like same. And for example, McDonald is not of India, but the same branches and same color of the McDonald, like yellow color is there. So this is franchising. And joint venture is that a partnership to share ownership and control, दोनों का कंट्रोल होता है. And wholly owned subsidiary means like 100% ownership है जिसमें. और can we this thing asked in questions like इन PYQs कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम फ्रॉम स्क्रैच से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक समथिंग 100% हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, समथिंग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें लाइक ऑलरेडी सब कुछ है और फिर हम बाद में उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है ब्राउन फील्ड. और मतलब इसे भी याद रख सकते हो, ग्रीन फील्ड मतलब एकदम हरियाली है जो अभी तक कोई चला नहीं है उस रोड पर. और ब्राउन फील्ड मतलब चल चल कर वो ब्राउन हो गया, उस पर काफ़ी लोग चल चुके हैं. दैट मीन्स दैट ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है एंड देन उसमें तुम इन्वेस्ट करो, वो होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ओके, सो next is contract manufacturing. In this, company outsource product while retaining control over marketing and branding. एंड अदर इज टर्न की प्रोजेक्ट. इसमें क्या होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या फिर कुछ और हो गया, कोई डिज़ाइन हो गई, लाइक हमने अगर मेट्रो बनवाई है, हमने कहीं जापान से कोई एम्प्लॉइज बुला लिया, उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट दे दिया मेट्रो बनाने का, उन्होंने मेट्रो बना दी एंड देन वो प्रोजेक्ट मेट्रो बनाकर रेडी करके ऑपरेट करने के लिए इंडिया को दे दिया. तो ये होता है टर्न की प्रोजेक्ट. ओके, एंड सो वी हैव कंप्लीटेड द मोड्स ऑफ एंट्री. एंड नेक्स्ट व्हाट आई एडिट टुडे, या दीज आर दी टाइप्स ऑफ बैरियर, लाइक टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर. इसमें से क्वेश्चन आता है जो टैरिफ के टाइप है ना, एड वैलोरम, स्पेसिफिक टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ. इसमें से मैंने PYQs देखे हैं. सो फर्स्टली फ्रॉम द टैरिफ बैरियर, इसमें क्या होता है, टैक्स और ड्यूटी इम्पोज होती है. लेकिन नॉन टैरिफ में क्या होता है कि टैरिफ नहीं होता, मतलब अगर ये टैक्स और ड्यूटी डायरेक्टली इम्पोज नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्ट होती है. और लेकिन ये मोर रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, ज़्यादा रुकावट वो करता है. ठीक है, तो टैरिफ के टाइप्स क्या है. स्पेसिफिक टैरिफ, इसमें क्या होता है कि तुम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लगा रहे हो पर फिजिकल यूनिट पर. लाइक 20 किलो कुछ खरीदना है तो तुम 20 किलो पर लाइक उस पर टैक्स लगा रहे हो, फिजिकल गुड्स पर टैक्स लगा रहे हो. ओके, एड वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, लाइक 10% उस पर लगेगा टैक्स. तो ये होता है एड वॉल्यूम. इसमें से क्वेश्चन बहुत आया PYQs में. एंड टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड टैरिफ में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वॉल्यूम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये होता है कंपाउंड. ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जब कोई भी गुड्स है वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर जो लगती है. ठीक है, ये टैक्स ऑन गुड्स लीविंग दी कंट्री, ये सिंबल मैंने कंट्री का बनाया है. ओके, नाउ है ट्रांजिट ड्यूटी और टैक्स ऑन गुड्स पासिंग थ्रू अ कंट्री. ओके, उसे ट्रांजिट होता है. लाइक कोई सामान हमने USA से मंगाया, कहाँ भेजने के लिए, हमने USA से मंगाया ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए, ऐसे लाइक एग्जाम्पल अज्यूम कर लो. तो जो आया है ना, जो हमारे इंडिया में जो रुका है, उसी का जो हम टैक्स लेते हैं वो होती है ट्रांजिट ड्यूटी. ओके, नेक्स्ट इज नॉन टैरिफ. इसमें क्या होता है, इंपोर्ट कोटा होता है, लाइक लिमिट ऑन क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड पे सिर्फ इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आता. लाइक 10 लाख कार ही इंडिया में इंपोर्ट आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, वो होता है इंपोर्ट कोटा. लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है कि तुम्हें परमिट और लाइसेंस तुम्हें लेना ही पड़ेगा इसे इंपोर्ट करने से पहले, होता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टेंट होता है कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है, लाइक सपोज इंडिया लिमिट कर देती है एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री. ओके, और नेक्स्ट होता है टेक्निकल बैरियर एंड स्टैंडर्ड. इसमें क्या होता है कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी रूल्स लगा देते हो, वैल्यू गुड क्वांटिटी क्वालिटी रूल्स और अदर स्टैंडर्ड्स बना देते हो, वो होता है. नेक्स्ट होता है सब्सिडी, कि तुम डोमेस्टिक जो कंपनीज है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हो. ओके, एंड अदर इज कस्टम प्रोसीजर, मतलब तुमने लाइक कस्टम प्रोसेस जो है वही कॉम्प्लिकेटेड बना दी. एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्ट कर दी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, लाइक आई वांट टू इम्पोर्ट फ्रॉम जापान एंड देन द गवर्नमेंट इज मेकिंग it is difficult to have the currency yen. Okay, so this is restricting availability of foreign currency for imports. Okay, embargo sanctions लगा दिए कि वहाँ से आएगा ही नहीं उस कंट्री से. लीगल कंटेंट रिक्वायरमेंट की मतलब लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जी की जो प्रोडक्ट है ना, वो ये प्रोडक्ट जरूरी है इसमें, तभी हम इंपोर्ट होगा, वो होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. बाय नेशनल पॉलिसी, अगर जैसे इंडिया में मेड इन गुड लाइक वो है कि इंडिया का ही खरीदो, तो फिर वही होती है बाय नेशनल पॉलिसी. ओके, ये भी रेस्ट्रिक्ट करती है. जब मोस्टली लोग डोमेस्टिक कंपनीज का ही माल खरीदेंगे तो वो इंपोर्ट नहीं होगा, सेम चीज़ है. ओके, नेक्स्ट व्हाट आई लर्न दीज थ्योरीज.
लाइक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। लाइक इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये कहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले थॉमस थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, ये किसने दी थी? इट इज डेवलप्ड बाई थॉमस मोन इन 1630। एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो नेशनल वेल्थ होती है ना, जैसे जितना लाइक पुराने सबसे पहले का मानो कि जितना तुम्हारे पास गोल्ड और सिल्वर है वही तुम्हारी नेशनल वेल्थ शो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो लेकिन इंपोर्ट लेस, इंपोर्ट कम करो। यही होती है थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसमें क्या होता है? ये एडम स्मिथ ने दी है, 1776 में बनी है। और एक कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट, एक कंट्री को वही एक्सपोर्ट करना चाहिए जो वो प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है, जिसमें लागत कम आ रही है। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ रिलेटिव एडवांटेज भी बोलते हैं इसको। ये तो बहुत क्वेश्चन में आई है, ये आई है और ये भी आई है। ओके, ये डेविड रिकार्डो, ये तो रट जाने चाहिए ये वर्ड्स। और ये 1817 में हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपैरेटिव, लाइक थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। लाइक अगर तुम कोई भी दो गुड्स बनाने में लाइक बना रहे हो, उसमें तुम एफिशिएंट हो, बट तुम्हें इसमें क्या देखनी चाहिए? लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, जिसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो ना वो तुम्हें बनाना है। ये होती है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, ये जेएस मिल ने दी है, 1844 में आई है। और इसका क्या है कि एक्चुअल टर्म ऑफ ट्रेड डिपेंड ऑन म्यूचुअल डिमांड ऑफ फॉर ईच अदर गुड्स, म्यूचुअल डिमांड पर डिपेंड करता है। ओके, ये होता है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ये कभी कभी जो है सीरियल वाइज में भी आ जाती है कि ये सीक्वेंसली लगाओ, कौन सी थ्योरी पहले आई है, कौन सी थ्योरी बाद में आई है। और नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, फैक्ट इंडोमेंट थ्योरी बोलते हैं, और इसे एचओ थ्योरी बोलते हैं। किसने दिया है? एलिया हक्शा एंड वर्टिलोलिन ने दिया है, और 1919 में आई। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर एबंडेंट फैक्टर। लाइक इंडिया में लगा लो कि लैंड सॉरी इंडिया में लेबर ज़्यादा है, तो हम कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे? लेबर ओरिएंटेड करेंगे। ओके, सो लेबर ओरिएंटेड हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे ओनली। सो दिस इज द थिंग। एंड नेक्स्ट है हमारी ये वाली रिसर्च ऑन एक्सट्रावोलिन एक्सेप्शन ऑफ एच होते हैं, लियोनटिक पैराडॉक्स के नाम से इसे जानते हैं। ये इसी का अपोजिट है, मतलब इसका क्रिटिसिज्म है। सॉरी, ये क्या हो गया? वेट अ मिनट, या सो ये इसी का क्रिटिसिज्म है। और ये किसने दिया? वसीली लियोनटिफ ने दिया, 1953 में हुई है। एंड नेक्स्ट है वही, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वही है लाइक इंपेरिकल टेस्ट ऑफ एचओ थ्योरी फाउंड। हाँ, इसका एग्जांपल ये लगा लो कि यूएस क्या है? यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया लेवर इकोनॉमी है। बट यूएस क्या, यूएस जो गुड्स मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हेक्साओलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग यूएसए को कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। लाइक इंडिया जब लेबर ओरिएंटेड कर रही है तो यूएसए को तो कैपिटल ओरिएंटेड करना चाहिए, बट नहीं, यूएसए क्या करता है? यूएसए एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव गुड्स। ओके, सो लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करता है, दैट मीन्स ये थ्योरी इसकी क्रिटिसिज्म बन गई। सो ये थ्योरी वही बताती है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये गॉटफ्राइड हेवलर ने दी 1936 में। ये थोड़ी कम आती है थ्योरी, बट मैंने लिख दिया क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आई है, पूछी गई है कि ये किसने दिया। इसका है रिफॉर्म रिकार्डो थ्योरी यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, रेमंड वर्नर ने दिया, 1960 में आई है। और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट शिफ्ट करता है इनोवेशन में, वो एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन वो डेवलप्ड कंट्रीज में बनेगा, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ वो एक्सपोर्ट हो जाएगा अदर डेवलप्ड कंट्रीज को, लेकिन मैच्योर जब हो जाएगा तो प्रोडक्शन जो है ना शिफ्ट हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज में। और जब मतलब डिक्लाइन होगा प्रोडक्ट का, तब वो डेवलप्ड कंट्री जो है वो खुद ही इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगी। होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये लिंडर हाइपोथेसिस ने दी, 1961 में बनी है। इसमें क्या है कि कंट्री विद सिमिलर डिमांड स्ट्रक्चर ट्रेड मोर ड्यू टू कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब जिसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा होती है ना वो ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है न्यू ट्रेड थ्योरी, ये पॉल क्रूगमैन ने दी है, 1970 में दी है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछी गई है पीवाईक्यूज में। ट्रेड अकर बिटवीन सिमिलर कंट्री सेम है। ओके, ट्रेड अकर ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर वेराइटी। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट थ्योरी पोर्टर्स डायमंड थ्योरी, इसको हम नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज भी बोलते हैं, और इसको हम और इसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें 4 फैक्टर्स पूछे जाते हैं। फैक्टर कंडीशन होती है, डिमांड कंडीशन होती है, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी होता है। ओके, नेक्स्ट थियरी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये मैंने इसमें ऐड किया बट ये अलग है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी अलग है, ये गुस्ताफ फैसल ने दिया। ओके, सो या दीज थिंग्स आई डिड टुडे एंड टॉकिंग अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड, आई वाज नॉट एबल टू डू इट टुडे, सो आई विल ट्राई टू डू टुमारो। एंड आज संडे था, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, बट हाँ आज मैंने ये कवर किया है। बट या स्लोली आई नो अगर मैं कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली आई विल कवर मोर एंड डेफिनेटली आई टोल्ड यू, आई विल टेल यू दैट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग एंड व्हाट आई एम डूइंग टू अचीव द JRF. So thanks for watching, have a nice day, bye bye everyone.